exact differential equation What is the exact differential equation? The differential equation definition. The differential equation which can be लिख सकते हो, which can be obtained by direct differentiation by direct differentiation of its general solution without eliminating or and transformation without eliminating and transformation is called exact differential equation. It's called the exact differential equation. Consider the general solution. Consider the general solution of a differential equation is f of xy is equal to c. Here c is the constant of integration. डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतना ही उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं. तो और सॉल्यूशन जब तुम लोग करोगे तो x और y में आता है फंक्शन, इसलिए फंक्शन x और y और ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया. दिस मींस दैट इफ वी डिफरेंशिएट देन राइट हैंड साइड विल बी 0. हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया सिंस फंक्शन f इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y. तो किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं वो भी अलग इशू है. हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. दिस मींस दैट कि we are going to differentiate the function with respect to x and y, है ना. This that is by total order में तुम लोग पढ़े हो कि differentiation of f with respect to x dx plus differentiation of f with respect to y dy और राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. इन शॉर्ट दैट इज. हेलो सर. हाँ बोलो सर. यहीं से शुरू हुआ है ना सर, आज क्लास नहीं था, हम लोग मालूम नहीं था. हाँ यही अभी स्टार्टिंग. सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दीजिए सर. सर इसको थोड़ा देर बाद मिटाइएगा, लिख रहे हैं. हाँ तुम लोग लिखो, लिखते रहो, सुनते रहो, लिखते रहो, है ना.
Now we can write in short mxy because ఈ అమ్మాయి ఏంద్రా క్లాసులు this Yeah. differentiation makes function of x and y both into dx plus n dy n x by n may be also function of x and y dy equal to 0. ठीक है? Where now but अगर हम फंक्शन ये m है, देखो कि डेवा m by डेवा y, this means that कि डेवा y m is your this डेवा f by डेवा x, है? This means that the second order derivative of with respect to x and y. Also, what we see, if we differentiate n with respect to x, this means that deva upon deva x into n is your deva f by deva y. Right. यानी कि we can find deva 2f deva x deva y. ठीक है, deva y पार्ट और ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है दोनों. दिस मींस दैट कि डेवा f by डेवा y डेवा x must be equal to second order derivative of डेवा x डेवा y. तो यही कंडीशन हुआ तुम्हारा, है ना? दिस इज द कंडीशन कि for a given differential equation to be exact, that is, this means that the differentiation of m with respect to y must be equal to differentiation of n with respect to x, which is the, यही तुम्हारा कंडीशन है, which is the required condition for a given differential equation to be exact. Now we solve the exact differential equation by, देखो प्रश्न क्या है, if कोई differential equation will be given, देखना यही तुम लोग हम निकाले हैं ना, and if the given differential equation be in this form m dx plus n dy, यानी कि all the dx be collected in one term and one be dy will be collected in the next term, है ना? In that case, the coefficient of dx is written as m and the coefficient of dy is assumed as the n. Now differentiate m, क्योंकि हमने m को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया है, इतना आया, और n को हमने x के सापेक्ष किया है, उतना ही आया. इसका मतलब है कि यही कंडीशन हुआ कि डेवा m by डेवा y डेवा n में ये रिक्वायर्ड कंडीशन है ना, फॉर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट. अब क्लियर हुआ? अब फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर क्लियर तुमने कर लिया कि एग्जैक्ट है, तो सॉल्यूशन करने का विधि ये है कि इंटीग्रेट m dx, संक्षेप में तुम m भी लिख सकते हो, तो इसमें y को कांस्टेंट कर देना, y एज कांस्टेंट लेना है, y इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, इसमें वही टर्म तुमको लेना है तब कि टर्म
terms not containing x, ये हो गया तुम्हारा n x y dy equal to 0, या sometimes the differential equation will so that if integration of this term will be easy, then integration of this term will be easy with respect to this term. तो हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे. तो इन दिस केस ना कि इंटीग्रल n x y dy है ना, तो इसमें तुमको x कांस्टेंट कर देना है, क्योंकि y के सापेक्ष में करना है. तो x बी कांस्टेंट, तो जब ये तुम्हारा m बच गया n x y dx, तो इसमें वही टर्म तुम लोग लेंगे कि टर्म्स नॉट कंटेनिंग y, वही टर्म लेना होगा जिसमें y नहीं. ठीक है, इक्वल टू 0. यही तुम्हारा मेथड. दिस इज द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको और कर देना. और हाँ सर, यहाँ पे वो टर्म लेंगे जिसमें y नहीं हो, मतलब अगर mxy वाले में अगर y वाला टर्म आएगा तो उसको ओमिट कर देंगे. फिर कर देना है, छोड़ देना है. ओके सर. हाँ, तुम लोग को छोड़ देना है. ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है. अब इसी पे देखो, एग्जैक्ट में बहुत से लंबा चैप्टर है, अगर खींचेंगे तो बहुत लंबा ले जाएंगे. नहीं, अगर संक्षेप में चलेंगे, समझते चलोगे, समझा रहे हैं. यही तुम्हारा क्वेश्चन बनना चाहिए to find the solution of exact differential equation. So we have a duty. First, the given differential equation to be examined whether it is exact or not. यदि exact है तो तुम देखोगे कि कौन इंटीग्रेशन, n का इंटीग्रेशन आसान है कि m का इंटीग्रेशन आसान है. अगर m का इंटीग्रेशन आसान है तो उसमें x को कांस्टेंट कर देंगे, y के सापेक्ष में करेंगे. तो m में क्या करेंगे कि वही टर्म लेंगे जिसमें y नहीं हो. इन केस अगर m का इंटीग्रेशन विल बी इजी देन द इंटीग्रेशन ऑफ n, तो m तो तुम्हारा x के सापेक्ष है, तो हम इसमें y को कांस्टेंट कर देंगे और n का वही टर्म लेंगे जिसमें x न हो, है ना. तो नाउ वी आर गोइंग टू solve by some problem. Now see, solve the differential equation पहला कि dy by dx is equal to minus of 2xy cos x square, 2xy cos of x square minus 2xy minus 2xy plus 1 divided by sin x square minus x square plus 3. Second, 1 plus e x by y 1 plus e raised to x by y plus e raised to x by y
into 1 minus x by y into dy by dx into dy by dx इक्वल टू 0। ना ये देखो solution of first this equation may be written as sin x square minus x square plus 3 into dx plus into xy cos of x square सर इंटू डी वाई होगा ना? dy होगा सर, इंटू dy होगा। ये dy होगा सर, ये dy होगा और ये 2xy cos x square minus 2xy plus 1 this is your dx is equal to 0 है ना। now this equation becomes in this form कि m dx cos n dy इस रूप में तुम्हारा आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ dx इज कॉल्ड m, ये तुम्हारा m हो गया, ये m है ना, और दिस इज योर n। नाउ वी हैव टू एग्जामिन कि whether this differential equation is zero exact or not, and what is the condition for differential equation to be exact is that dy m by dy y must be equal to dy n by dy x है ना। now differentiate कि m को डिफरेंशिएट करो y के सापेक्ष में, देन वी फाइंड कि 2x cos of x square minus 2x ना, एंड m को डिफरेंशिएट करो x के सापेक्ष में, दिस इज योर n। इफ यू डिफरेंशिएट तो दिस इज योर cos x square and x square का होगा 2x and minus 2x that is your 0। now say this what we see here the differentiation of m with respect to y must be equal to differentiation of n with respect to x। This means that the given differential equation is exact। ये तुम्हारा exact है, जब exact है तब तो डिफरेंट इंटीग्रेट करने का यही तुमको तरीका है सॉल्व करने का। अब तुम इसमें से हम देखेंगे कि m और n में जैसे अगर इनको इंटीग्रेट करना है तो y के सापेक्ष करना होगा, तो अगर y के सापेक्ष करते हैं तो इसको करना होगा तो x के सापेक्ष करेंगे और y को कांस्टेंट मान के चलेंगे कि कौन बेटर होगा, है ना, कौन अच्छा होगा। देखो तुम सर x वाला dy वाला सर। अगर हम इसको लेट करें y के सापेक्ष में तो x तो कांस्टेंट मान के चलेंगे, है ना। सर साइन वाले को ले लेंगे तो सही। यही ठीक है। यस सर, उस वाले टर्म में सिर्फ 3 बचेगा। तो ठीक है, देखो इफ भी x का टर्म है y को अलग कर दो कि 2x cos of x square minus 2x y plus 1। if you this term will be integrate with respect to x, तो y क्या करेंगे, y को कांस्टेंट मान के चलेंगे यहाँ पर, कांस्टेंट। तो इस केस में dy में साइन x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3 into dy
इक्वल टू 0। अब 0 नहीं, अब तो सी कर देना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें वही टर्म लेंगे कि टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, n लिखे हैं वहां पर, इस केस में y एज कांस्टेंट, तो टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। अब इसमें y को कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट करो। यदि हम x स्क्वायर को t मान लें तो 2x, x का dx और t का कितना हो जाता है, dt हो जाता है। तब ये टर्म कितना किस रूप में आ जाएगा, तुम्हारा cos t और 2x dx को हम लोग कितना लिख सकते हैं, dt, और y तो तुम्हारा कांस्टेंट है। दिस मीन्स दैट इंटीग्रेशन विल बी बाय cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी cos का इंटीग्रेशन, sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin की sin ऑफ t, और यहाँ y इज कांस्टेंट, डायरेक्ट इसको x स्क्वायर by 2 will be cancelled into y plus x, है ना। नाउ हियर सी कि वही टर्म इसमें से तुमको चूज करना है जिसमें x ना हो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कि ये दोनों 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 इंटीग्रल dy इक्वल टू c। ठीक है, वी कैन राइट कि y sin of t is your x square minus बाकी का पेपर मत करो, x square y plus x 150 बच्चा में 70 पर जाएंगे, सॉरी 160 में 70, 6 कर रहे हैं plus x plus 3y is equal to c. This is your answer, है ना। c is ci integration. In same way we can solve the next question also. Which is the required condition. See here, the solution of 2. No. This may be written कि 1 plus e raised to x by y into dx plus e raised to x by y 1 minus x by y dy is equal to 0। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो नाउ इफ वी कंपेयर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। सो दिस इन दिस केस दिस इज योर n, है ना, एंड इन दिस केस दिस इज योर n, ये n है, बट वी हैव टू एग्जामिन whether this differential equation is resolved or not, and the required condition for is that this term must be equal to, है ना। इसलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ डिफरेंशिएट m with respect to y, so then we find ये 0 e raised to x by y है, and minus x by y square ये आ रहा है। यदि कि माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स बाई वाई। नाउ डिफरेंशिएट n with respect to x, and also the differentiation of n with respect to x, ये n है,
तो e raised to x by y into 1 by y into 1 minus x by y plus e raised to x by y to 0 minus 1 by y y, that is this term will be cancelled by this, and then we find the minus of x by y स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दो इंटू e बाई एक्स वाई, है ना। तो दिस हम ना दस वी हैव the differentiation of m with respect to y is equal to differentiation of n with respect to x. This implies that the given differential equation is exact. ये क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा एग्जैक्ट है। देन तब इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, यही तरीका से, यही सॉल्यूशन का विधि है। Then now required solution. Now required solution B. Required solution B. अब तुम देखो कि इसमें इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, उसी की रिस्पेक्ट में चलेंगे हम लोग। यदि x के रिस्पेक्ट में करते हो इंटीग्रेशन, नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx इसी पर करो कि इंटीग्रेशन 1 प्लस e रेज़ टू x by y dx and plus integral e रेज़ टू x by y 1 minus x by y dy इक्वल टू c। यहाँ हम करेंगे y कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, है ना, y इज कांस्टेंट, और इसमें वही टर्म तुम लोग लोगे, टर्म्स not containing x, term not containing x, अब इसको तुम लोग इंटीग्रेट करो तो y कांस्टेंट है ना, तो इस केस से इंटीग्रेशन विल बी x प्लस एक्सपोनेंशियल y into e का पावर x y into y by 1 by into y, yes y, ठीक है ना, और प्लस अब यहाँ देखो कि we have to take in that term that is not containing x,
तो जब यहीं पर x है, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो हर टर्म में तो x आएगा ही। इसका मतलब है कि इन सेकेंड टर्म वी हैव नो एनी टर्म डज नॉट कंटेनिंग द x। दिस मीन्स द इंटीग्रेशन इन दिस टर्म इज 0, dy is equal to c। देखिए कि x plus y e raised to x by y is equal to c. C is the constant of integration. This is your solution. This is your solution. सो mn और n को एक्सचेंज करके ले रहे हैं तो आंसर अलग आ रहा है। क्या करके? मतलब जिसको आप m लिए हैं उसको n ले रहे हैं, और जिसको n लिए उसको m ले रहे हैं, तो आंसर अलग आ रहा है। मुझे आ रहा है x e का पावर x का पावर x y माइनस e का पावर x y y। ठीक से देखोगी कहीं गलत मिस कर रही हो, है ना? मिस कर रही है। अब there are some differential equation which is not exact। तो सेम आना चाहिए ना आंसर। हाँ, कि that equation है ना, that equations may be made exact। How? तो that equation अब तुम लोग कर दो यहाँ पर कि नन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि द डिफरेंशियल इक्वेशन which is not exact, that is, इसका मतलब है कि उस केस में तो वो टर्म बराबर होता था, तो जब नॉन एग्जैक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं होगा। दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ n with respect to y not equal to differentiation of n with respect to x is called कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन and differential equation and such differential equation may be reduced to exact differential equation, इसको एग्जैक्ट हम डिफरेंशियल कर सकते हैं। अब इसमें है तुम्हारा तरीका कि किस रूप का हो, कैसा हो, तो उसको कैसे हम एग्जैक्ट बना सकते हैं, है ना? मे बी टू बी एग्जैक्ट कैसे कि बाय मल्टीप्लाइंग, कैसे करेंगे? तो बाय मल्टीप्लाइंग a function, by multiplying a function to the, इसी फंक्शन को by multiplying a function to the differential equation and this function is known as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग वहां भी आएगा, लीनियर जब पढ़ाएंगे तब, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस केस में आओ कि एक केस हम उठा के चलते हैं। केस फर्स्ट कि इफ है ना, सपोज दैट कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट,
तो मेन काम यही है कि फर्स्ट तुम्हें एग्जैक्ट बनाना है, और जब एग्जैक्ट बन जाएगा तब तो हमारे पास तरीका है ही इंटीग्रेट करने का। कि इफ है डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y में से अगर हम m के डिफरेंशिएशन को घटा दें और उसको डिवाइड कर दें हम m से, और वो x का फंक्शन मिले, y नहीं होना चाहिए उसमें, है ना, फंक्शन ऑफ x, दैट इज फंक्शन ऑफ x ओनली, केवल x का फंक्शन हो, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, then integrating factor will be given by e raised to integral f of x dx, है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा तब तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाइड करने से होगा का कि जो अभी नॉन एग्जैक्ट है वो एग्जैक्ट हो जाएगा, और जब भी एग्जैक्ट होगा तब तुम इसको सोल्व कर सकती हो। सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद क्या लिखे हैं? e टू द पावर, कहाँ लिखे हैं वो? सर लास्ट लाइन fx इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx। इसके बाद केस फर्स्ट, सर नीचे में सबसे नीचे में इंटीग्रेशन ऑफ then integrating factor is equal to e raised to, इसीलिए यहाँ पर हम जा रहे थे कि थोड़ा सा साफ करके लिखिए, ये तो n है ही, then इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised to इंटीग्रल, वही फंक्शन जो यहाँ आया है उसको इंटीग्रेट कर दो। नाउ दिस प्रोसेस क्लियर बाय द सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। Solve the question. This is the question. We solve the see y log y log of y into dx plus x minus log y dy is equal to 0. No, by as we know that the standard form of the exact differential equation is just like this, is equal to 0. यानी कि कोफिशिएंट ऑफ dx is called your n and coefficient of dy is called your n. So in this case, this is your m, and this is your n. What is that condition? I mean, for a given exact allow difference with respect to y, then we find log y plus 1 and y1 log y and y into 1 by y कट के कितने होंगे 1 and n को डिफरेंशिएट कर दो x के सापेक्ष में, then we find 1 minus और that will be 0, this is 0 1, but you see कि ये कंडीशन जो है एग्जैक्ट होने का बराबर नहीं है। This means that this implies that the given differential equation is not exact, then what we say that यहाँ हमने कहा है
यदि एग्जैक्ट नहीं है तो नन एग्जैक्ट हो गया, और नन एग्जैक्ट हो गया तो उसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें मल्टीप्लाइड करके उसको एग्जैक्ट बनाया जा सकता है ना, कि दैट फंक्शन, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन may be reduced in the exact form by multiplying the sum function, and that function is called your integrating factor. So now in this case we will be also to find the integrating factor, माने कि वही फैक्टर कि जिससे मल्टीप्लाइड करना होगा। तो फर्स्ट केस है कि अगर ये रूप में फंक्शन x के आता है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस रूप में आएगा। तो नाउ अब इस पर चेक करो कि नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस m विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय n इक्वल टू, ये मान कितना आया है कि log y प्लस 1 और माइनस n माइनस 1 और n इज योर x माइनस log y, log y, n इज योर cos, कैंसिल, लेकिन x आ जाता है, इसमें log y नहीं आना चाहिए था। डिवाइड बाय dy माइनस डिवाइड बाय dy x बाय n, n with respect to x, ठीक है, log y प्लस 1 माइनस 1 तो log y हो गया, यदि हम ये लेके चले सर रुको ना, हाँ का कहीं मिस लग रहा है, n की जगह पे m नहीं आएगा क्या? n की जगह पर m तो y का फंक्शन बन जाएगा। हेलो सर। और वही नहीं, आप देखो ऐसे है कि दूसरा केस में आते हैं कि अगर m by and divided by, हेलो सर। हाँ सर y log y dx तो x कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कहाँ पर ये ऊपर सर अब y का फंक्शन बनेगा। y log y है सर। क्वेश्चन में m जो लिखे हैं, हाँ m लिखे हैं वो सर y log y dx है। m, रुको तो क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है dx, ये सही है सर। my ये सर सर वो ये सही है। सही है सर, वो सही सही है सर। वो सही है। है सर। इस पर देखो तो इसका मान निकालो तो अगर कि 1 सर माइनस, y का फंक्शन आ रहा है। एक मिनट हट जाओ, माइनस log y माइनस 1 डिवाइडेड बाय m, m इज योर y इनटू log ऑफ y, वो सेकंड केस आ गया ना, दिस मींस दैट दिस इज योर कैंसिल एंड माइनस 1 अपॉन y ये आ रहा है, एक केस सेकंड है, तो इसको ऐसे कर दो ना, एक केस फर्स्ट है, इस पर प्रॉब्लम है मेरा नहीं ढला, कि प्रॉब्लम हो गया सेकंड का, इसको ऐसे सेकंड का सर बाद में बता दीजिए, उसको रहने दीजिए। इस सेकंड का प्रॉब्लम है, इस केस का है, इस केस को फर्स्ट कर दो तुम, इसी केस को तुम लोग फर्स्ट करो और उसको सेकंड कर दो। अच्छा नहीं तो इसी को फर्स्ट रहने दो, सेकंड ये देख कर दो,
तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कैसे e रेज टू इंटीग्रल f ऑफ y dy, है ना, यही तुम्हारा f ऑफ y हुआ। दिस मीन्स दैट e रेज टू माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन y dy, that is 1 upon y, है ना, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। एंड व्हाट इज द रूल? रूल तुम यही कर रहे हो को रिड्यूस करना है जब एग्जैक्ट में, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। नाउ अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 1 by y into log y dx plus 1 upon y into x minus log y, this is your dy, no? Then becomes, if you multiply the log y dx plus x by y minus log y by y dy equal to 0, आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स इन दिस फॉर्म। तो जिस फॉर्म में आया किस लिए? आफ्टर मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटेड द ट्रांसफॉर्म फॉर्म इज दिस, तो दिस फॉर्म शुड बी इन एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि एग्जैक्ट करने के लिए हमने किया। तो फिर हम इसको चेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल the coefficient of dx will be your m, तो इसको m1 कर दो, and coefficient of dy is your n, इसको n1 कर दो। Now again differentiate m1 with respect to y. Now we have to examine whether the reduced form becomes in exact or not. So again differentiate m1 with respect to y, then we find 1 upon y, and differentiate n1 with respect to x, then we find 1 upon y minus 0, that is 1 upon y. What is c? Thus, that is, we see that the deba m1 by deba y must be equal to deba n1 by deba x. This indicates that कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हो गया रिड्यूस किया हुआ टू, इस लाइक है कि रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन टू इज एग्जैक्ट। अभी एग्जैक्ट हो गया, जब एग्जैक्ट हो गया तो इसको एग्जैक्ट वाला सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ वी कैन सॉल्व, नाउ वी सॉल्व by process चाहे rule, by rule of exact differential equation. Exact differential equation. What is the process? That is, ये तुम्हारा फंक्शन है, अगर इसको इंटीग्रेट करो y x के सापेक्ष तो y को कांस्टेंट रखेंगे ना, और उसमें से वही टर्म लेंगे जिसमें x ना हो, अदरवाइज
अगर इंटीग्रेट log y dx, तो इस केस में y विल बी कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रल वो टर्म आ रहा है कि x बाई वाई माइनस log y बाई वाई dy। तो इसमें से वही टर्म आपको लेना होगा कि टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, दैट इज अगर तुम y कांस्टेंट है तब ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि log y और dx का क्या हो जाएगा x, सॉरी जीरो नहीं, अब तो c हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो कि ये टर्म तुम्हारा जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y log y के होल स्क्वायर बाय 2 log y सर कितना होगा, y के सापेक्ष में करोगे तो log y का 1 बाई वाई और y का dy, तो ये z हो गया log y सर मैंने सर log y का स्क्वायर बाय 2 बाई बाय 2, 2 और ये तुम्हारा c है, दैट इज कि x log y माइनस ऑफ log y होल स्क्वायर बाई, चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाइड कर सकते हो इक्वल टू 2c, और दोनों ये भी कांस्टेंट का जोड़ कोई भी अलजेब्राइक ऑपरेशन जो होगा कांस्टेंट के आपस में मल्टीप्लाइड कर दो या ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो या डिवाइड कर दो, वो भी कांस्टेंट होगा। मान लिया जाए तो नया कांस्टेंट बन गया, दैट इज 2x log y माइनस log y होल स्क्वायर है ना इक्वल टू k, दिस इज योर आंसर, k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस केस पर देखना जो हमने मिटा दिया, ये सेकंड पर आ गया हम लोगों का, इस सेकंड पर प्रॉब्लम आ गया। अब मैं थर्ड केस कर दो। सर फर्स्ट केस का एग्जांपल करा दीजिए। हर तो ऐसा प्रॉब्लम में रहेगा, हम तो फर्स्ट के लिए बना रहे थे उसको, लेकिन इस पर सेट नहीं किया, वो आ गया तो सेकंड केस पर आ गया, फंक्शन ऑफ वाई आने लगा। अगर वही x आता तो एफ हम करते, तो केस फर्स्ट में क्या लिखे थे याद रखना, यहाँ पर ये तो उसमें इसमें से हमने इसको घटाया था तो n केस फर्स्ट है, और सेकेंड में अगर इसमें से तुम इसको घटाओगे तो m से डिवाइड करना है, अपने दिमाग में बैठाए रखना। थैंक यू वेरी मच सर, बाय सर। कल की क्लास लेंगे हम, है ना सर? हेलो सर, हाँ बोलो सर। कल मत लीजिएगा सर, करके क्लास लीजिएगा सर, हम लोग को मालूम नहीं चल पाता है। मालूम नहीं हो पाता सर है जम्मू नो सर सर तो- जम्मू